What are crystals and how do you think they work? Crystals are nothing but they are a part of mother nature. डायबिटीज़ के लिए ना आई फील कि इंसुलिन इज़ द ओनली वे. हम ये नहीं बोलेंगे कि आप डॉक्टर के पास मत जाइए, आप इंसुलिन मत लीजिए, आप अपना कार्य कीजिए, पर साथ में PCOD, PCOS and fertility increasing very much. Can all of these things help PCOS and yeah, PCOD? How? So say I'm going to tell you about your soon past, present and soon future energies. पहली चीज़, अगर आप किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं. Pooja, welcome to the Not Knowing podcast. First of all, thank you so much for doing this. So I wanted to learn about crystals, right? I did a podcast with an astrologer. I was researching. I was like, what are crystals? What are gemstones? I had no clue. Like, and growing up, I have also, seen that people have a negative connotation around it. So I wanted to get a person who's expert in this, and then we connected. So I wanted to understand, first of all, what are crystals and how do you think they work? Okay. Yeah. So see, basically crystals are nothing but they are a part of mother nature. Okay. How we have normal stones, how we have mother earth that we are walking on, crystals are exactly the same thing, but they have different frequencies and different level of content in them. Like say different, we live in 5 elements, different elements are there. Every stone has a particular element in it. Okay. Now, how do they work? Actually, there are more than 16,000 crystals in the world. Okay. So I would request not to confuse yourself with gemstones and crystals because they are two different aspects. Gemstones are only 9 in the world, okay, which is emerald, ruby, topaz, neelam, आप जो भी बोलना है, sapphire. That way there are only 9 in the world. Diamond, pearl एक हो जाता है उनमें. But stones like crystal itself, they are 16,000. Gemstones are precious. These are semi-precious. Okay. In a easy understanding, वो बड़े भैया हो गए, ये छोटे भैया हैं. ठीक है. Crystals can be affordable by every single body. Okay. गरीब है, अमीर है, चाय वाला है, जोमेटो का ओनर है, कोई भी है, सबके लिए स्टोन्स बने हुए हैं, क्रिस्टल्स बने हुए हैं. अब क्रिस्टल्स में एक डिफरेंस ये होता है, देखिए जेमस्टोन क्या होता है. जेमस्टोन आपके लिए काम करता है. हमने आपकी कुंडली देखी, आपके कौन से ग्रह में, आपके कौन से घर में किसका वास है वो देखा और उसके अकॉर्डिंगली आपको सजेस्ट किया. हम इनके अकॉर्डिंग काम करते हैं. अगर आपको पैसा चाहिए तो आप पैसे वाला पत्थर पकड़िए. अब इसमें आप पाइसेस हो, आप टॉरस हो, आप कैप्रिकॉर्न हो, आप लियो हो, डजंट मैटर. पैसा सबको चाहिए, देयर इज़ अ मनी स्टोन. प्यार सबको चाहिए, देयर इज़ अ प्यार का स्टोन. स्वास्थ्य सबको चाहिए, हेल्थ अच्छी होनी चाहिए, देयर इज़ अ स्टोन फॉर हेल्थ. आप कोई भी चीज़ सोच लीजिए, देयर इज़ अ स्टोन एग्जिस्टिंग फॉर दैट 100%. Okay. So yeah. ठीक है. So let's talk about crystals only first. Let's get deeper into it. So I want to understand, like, when people say there are energies, right, and crystals are charged by energies. This is what I was reading. So how do you think it works? So people who are skeptic in nature, like who don't believe in this, would say यार ये scientifically backed नहीं है, right? This is not scientifically backed, or maybe I think the opinion that comes up is कि science is not advanced enough to understand how this crystal works, right? So according to you, you have been practicing this for how many years? As I told you, since childhood I've been inclined towards spirituality. Purely crystals have only become vastly famous in last 4-5 years only. 4-5 years. Yes. Okay. So I've been into it. As I said, I'm a Reiki Lama master. I do hypnosis, pendulum reading, I do dream analysis. Because my father is a pandit, we have come from I'm a star seed. तो मतलब मेरे दादा परदादा नाना जी हीलर थे. मेरे पिताजी completely पंडिताई में हैं. He is a pure astrologer. उनके 2 गुरुकुल्स हैं. इंडियन आर्मी में वो धर्म गुरु थे. मतलब रिलीजियस टीचर थे. इंडियन आर्मी के साथ वो सिखाते थे सबको वहाँ पे. एंड इट इज़ कम समहाउ इन ब्लड. एक टाइम पे हमें भी रियलाइज़ हुआ एंड इट वर्कड. वेयर हमारे जो हीलर हैं, जो हम सबके अपने अपने ही हीलर होते हैं, हमारे भी गुरु हैं, उन्होंने हमको एक्चुअली ये वाला स्टोन जो है रोज कॉर्ड्स वो दिया था. ये पर्टिकुलर स्टोन जो है हमको ये दिया था एक डिफरेंट फॉर्म में. और उसके बाद से हमारी क्रिस्टल की जर्नी शुरू हुई. मैं स्पिरिचुअल कोच हूँ तो मैं सिखाती बहुत हूँ. फिर मैं हीलर हूँ, लोगों को मेडिकल इश्यूज़ का ठीक करती हूँ बहुत सारा. ये नहीं बोलूँगी कि आपको मेडिकल छोड़ के हमारे पास आना चाहिए, पर ये बोलूँगी कि अगर आपके पास 2 लूप होल हैं तो दोनों में कहीं ना कहीं आपको पता नहीं कब राह खुल जाए, कब क्या बेटरमेंट आए. सो दैट एंड क्रिस्टल्स आई हैव सीन इज द ईजीएस्ट वे ऑफ ब्रिंगिंग अ डिफरेंस इन योर लाइफ. अगर मैं आपको कोई टोटका देती हूँ,
आपको मिनिमम कुछ ना कुछ दिन तो करना ही पड़ेगा। अब मैंने आपको बोला 40 दिन ये टोटका कीजिए, आपने किया 10 दिन और आपने छोड़ दिया। आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। एटलीस्ट स्टोन में क्या है, मैंने आपको ब्रेसलेट दिया, आपने हार्ट में डाल लिया, आपको कुछ करना नहीं है। समझ गए? सो दैट वे इट वर्क्स वेरी वेल, जहाँ पे आपको कुछ नहीं करना होता, बट इट वर्क्स क्वाइट वेल इन दीज फेसेस। एंड हाउ आर दीज क्रिस्टल्स एनर्जाइज्ड? सी पहली चीज, हम स्पिरिचुअलिटी की एक बात है, आध्यात्मिकता की। आप रिलीजन ले लो, भगवान ले लो, कुछ भी ले लो, नियत, आप इस्लाम में बोले तो नियत, इंग्लिश में बोले तो इंटेंशन, जो भी, आपका इंटेंशन सबसे पहले प्योर होना चाहिए। ठीक है? आपका जिस तरीके का सोचना होगा, जिस तरीके की आपकी इंटेंशन होगी, उसी तरीके का वो काम करेगा। अगर मेरा काम है कि मुझे सिर्फ बेचना ही है आपको, तो ये मेरे लिए सिर्फ एक सामान है, एक जरिया है पैसा कमाने का। बट अगर मेरा काम है कि आपको बेहतर करके देना है, तो अलग है। नाउ इन मार्केट, बिकॉज व्हेन इट कम्स टू क्रिस्टल, वी हैव स्टडीड द मार्केट क्वाइट वेल, इवन आउटसाइड एंड इवन इन इंडिया। ओके, वी सी द मैक्स पीपल डू इज जस्ट एनर्जाइज देम बाय रेकी। Okay, Reiki is a distance healing concept. It's a modality, Japanese modality. Spirituality में भी जैसे वास्तु हो गया, कुंडली हो गया और न्यूमरोलॉजी हो गया, ये 3-4 मोडालिटीज़ होती हैं, अलग अलग तरीका। वैसे स्पिरिचुअलिटी में बहुत बड़ा सागर है, बहुत सारी मोडालिटीज़ होती हैं। रेकी एक जापानीज़ मोडालिटीज़ है जो लोग उससे एनर्जाइज करते हैं, पर हम जिस तरीके से एनर्जाइज करते हैं वो मार्केट से बहुत ही डिफरेंट है। फर्स्टली, हम जब इनको बनाते हैं तो हम इस पे वैदिक मंत्रा चैंट करके बनाते हैं। अगर पैसे का पत्थर है तो पैसा का मंत्रा, प्यार का पत्थर है तो प्यार का मंत्रा, इनको उस तरीके से होता है। जब इनकी गांठ लगती है, जब ये क्लोजर पे आते हैं, तब एन्चैंटमेंट होके इनको नॉट मैजिक के साथ सिक्योर किया जाता है। अब ये तो हो गया वैदिक तरीका, जो मेरे मदर फादर मुझे सपोर्ट करने के लिए करते हैं। अब जब ये हमारे हाथ में आते हैं, बिकॉज आई एम अ रेकी लामा मास्टर, व्हाट आई डू इज आई एनर्जाइज इट विद रेकी, विद लामा फेरा एंड विद ची। ची इज़ नथिंग बट अ चाइनीज़ फॉर्म। आप एनर्जी को ची बोलते हैं, तो एक तरीके से एनर्जी जनरेट की जाती है, आप डालते हैं। सो हम अराउंड से 4-5 डिफरेंट मोडालिटीज़, वैदिक भी हो गई, जापानीज़ भी हो गई, बुद्धिज़्म भी हो गया, चाइनीज़ भी हो गया, इसको हम एनर्जाइज करते हैं। एनर्जाइज ध्यान लगा के किया जाता है, कई बार मंत्रा पढ़ के किया जाता है, अपना अपना सबका तरीका होता है। हम 4-5 अलग तरीक़ों से करते हैं। फिर जब आप हमसे ख़रीदने आते हैं तो हम इनको क्लेंस करते हैं। अब क्लेंस का मतलब क्या होता है, ईजी भाषा में, जैसे नहाना, इंसान नहाता है, वो होता है क्लेंजिंग, गंदगी को निकाल देना। एनर्जाइजिंग, दिन के लिए तैयार होना। आज आपको अच्छा दिन है, आप अच्छे कपड़े पहनेंगे, आप रेडी होंगे, अपने आप को गुड एफर्मेशंस बोलेंगे, ये होता है एनर्जाइजिंग। सेम तरीके से जब कस्टमर आ रहा है तो सोचिए, अब आप आए, आपने ये देखा, टच किया, आपकी एनर्जी गई होगी इसके अंदर, आपने कुछ पुल आउट किए। हम 1-on-1 डील करते हैं कस्टमर से, हम क्लेंस करके देते हैं। अगर कोई चीज़ ऑनलाइन होती है, क्योंकि हमने देखा वास्टली बहुत ज़्यादा ऑनलाइन बिक रहा है, पर लोग सामने वाले को ये नहीं बताते कि इस्तेमाल किस तरीके से करना है। मैंने आपको कुछ दे दिया, पर आपको ये नहीं पता कौन से साइड पहनूं, इसको कैसे क्लेंस करूं, कैसे एनर्जाइज करूं, तो ये सब लोगों को नहीं पता होता। हमें लगता है कि अगर आप कोई ऐसा प्रोडक्ट खरीद रहे हैं जिसके पास, आपके पास उतनी नॉलेज नहीं है पर हमारी पास है, तो हमारा धर्म बनता है आपको ये बता के देना कि कैसे इस्तेमाल करें, कैसे नहीं इस्तेमाल करें। तो हम कस्टमर्स को, क्लाइंट्स को एक ग्रुप का एक्सेस देते हैं जब भी वो हमसे प्रोडक्ट खरीदते हैं, जहाँ पे सारी ज़िंदगी के लिए, आप भले हमसे 500 का, 1000 का, जो भी खरीदना आप वो खरीदिए, पर हम सारी ज़िंदगी के लिए आपको बताएंगे ये पत्थर कौन सा है, कैसे इसे इस्तेमाल करें, किस तरीके से क्लेंस करें, एनर्जाइज करें, कैसे यूज़ करें, कोई मंत्रा चैंट कर सकते हैं। तो ये हम एक फ्री कम्युनिटी में सबको स्पिरिचुअलिटी के लिए बताते हैं। ठीक है। एंड ये तो हो गया लाइक हाउ आई एनर्जाइज एंड आई टीच। क्लेंजिंग करके देते हैं। एक्स्ट्रा आपके घर जब सामान पहुंच जाएगा तब हम एक बार फिर से एनर्जाइज करेंगे। तो अब सोचिए, अगर आपने अपने दोस्त के लिए खरीदा है, जब तक आपका दोस्त के पास ये सामान नहीं पहुंच जाता, जैसे ही वो पहुंच जाएगा हम फिर एक बार फ्री एनर्जाइजिंग देंगे। इस वजह से हमने मार्केट में बहुत कंपैरेटिवली देखा कि हमारे स्टोन्स एक्सट्रीम, मतलब वी गिव इट विद रिफंड वैल्यू। अगर काम नहीं किया, व्हाट इज द रिफंड वैल्यू? सो से अगर आपने हमारे पास आए और आपने कोई भी एक पत्थर खरीदा हमसे जिसका दाम है 1000 रुपए, ठीक है, काम नहीं किया पत्थर, आपने 6 महीने इस्तेमाल कर लिया, आप अपना 1000 रुपये ले जाइए, हमारा पत्थर भी रख लीजिए, वी डोंट वांट इट। क्योंकि इट इज़ अनफेयर कि आपने जो चीज़ इस्तेमाल करी है वो मैं लेके किसी और को बेच दूँ। आपकी एनर्जी है उसके अंदर, तो अगर हम ये बिलीव कर रहे हैं तो हम आपसे पत्थर नहीं लेंगे। पत्थर आपका है, ठीक है, पैसे आपके हैं, आप ले लीजिए। बिकॉज एज आई सेड कि हम कर्मा ऊपर वाले से भी डरते हैं झूठ बोलने से। अच्छा, बहुत बिजनेस है खोलने के लिए। द रीज़न वी चोज दिस इज
because we know somewhere or the other it is bringing a very easy way of solving a problem in somebody's life. Okay. So that way. So when we talk about solving a problem, right? I think what people do is people do like so what I was reading about is कि जैसे this is astrology also, right? Let's take an example of astrology. So astrology के बारे में if you look at it, so the root cause is कि people want someone to talk to them and tell them the solution of their problems, right? So that is also what psychology does, like counseling, if I talk about therapy, right? So that is also what they do. So do you think कि कई लोग who are actually suffering through something, like if they are actually lonely, if they want to talk to someone, do you consider them going the astrology route, or do you want them to go to the counseling or the therapy route? Like what would be See, like both of it, अपनी अपनी जगह पे दोनों अच्छे हैं. okay? आप चूज वन में नहीं कर सकते. बट नाउ डेज एज दे से like think that I don't have a therapist but I have an astrologist. Yeah. Okay, but at the same time अगर आप मुसलमान हैं तब तो आपको थेरेपिस्ट चाहिए ना. आप तो बोलेंगे कि हम तो नहीं भरोसा करते, पर ऐसा नहीं है कि आपका दिल नहीं दुख रहा है. Okay. Okay, like you are also going through hurdles of life, troubles of life. तो एक वो है. दूसरा एस्पेक्ट ये है, देखिए एस्ट्रोलॉजी अपनी जगह अलग है, थेरेपी अपनी जगह बहुत अलग है. एस्ट्रोलॉजी आपको एक तरीका बताएगी कि क्या हो रहा है, कैसा हो रहा है, आप किस नक्षत्र में पैदा हुए थे, क्या होगा. ठीक है, अगर आपको ये भी पता है कि क्या होगा पर आपके कंट्रोल में ही आपके दिमाग नहीं आ रहा है, तब आप क्या करेंगे. आज के ज़माने में बात करना बहुत ज़रूरी है. ठीक है, हम ये बात मानते हैं, कपल्स हो जाएं, कोई भी हो जाए, बच्चा हो, परिवार हो, इंसान का बात करना बहुत ज़रूरी है. अपने आप को एक्सप्लेन करना, अपने आप को दूसरा किसी के सामने रखना जो जज ना करे. ठीक है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. एंड थेरेपिस्ट वो काम करता है. लाइक टू बी ट्रूथफुल, हम बहुत थेरेपी करते हैं. लाइक हमारे पास खुद के क्लाइंट्स हैं जो थेरेपी के लिए आते हैं. हम उनको एक्टिविटीज़ भी देते हैं बाद में कि आपको ये कीजिए तो बेटरमेंट आएगा, ये ऐसा करना पड़ेगा, ये ऐसा एक्टिविटी है एंजाइटी के लिए, ओवरथिंकिंग के लिए. बट द रीज़न वी चोज दिस साइड ऑफ स्टोन्स वॉज बिकॉज मैंने आपको अगर बोल दिया कि देखिए आप ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, अब ओवर थिंकिंग मत कीजिए, ये सही बात नहीं है, कंट्रोल कैसे करेंगे. मैंने तो बोल दिया मेरे काम से, पर ये होगा कैसे. इसलिए हम आसान तरीका लेते हैं स्टोन्स के थ्रू. स्टोन इज वन ऑफ अ फर्स्ट स्टेप दैट यू शुड डू. व्हाई? बिकॉज से इवन लेट इट बी फॉर अ फैक्ट ऑफ रेकी, या मैं आपको कोई भी हीलिंग करूं, लोग स्पेल बहुत कराते हैं आजकल, स्पेल करूं, कुछ भी करूं, अगर आप ही नेगेटिव हैं तो मैं जो पॉजिटिविटी भेजूंगी वो सिर्फ 50% में अफेक्ट कर रही है. आप तो नेगेटिव, आप रिसेप्टिव नहीं है, आप ले नहीं रहे हैं वो चीज. स्टोन क्या करता है, आपकी सबकॉन्शियस माइंड पे काम करता है. तो ये आपकी नेगेटिव वाइब को पॉजिटिव में टर्न करता है. तो जब हम हीलिंग करेंगे तो ज्यादा पावरफुली काम करेगा. ओके, ठीक है. नो, दैट मेक्स सेंस, दैट कम्प्लीटली मेक्स सेंस. अगर हम बात करते हैं, जैसे आपने बोला एस्ट्रोलॉजी में देयर आर सम प्री डिफाइंड थिंग्स, जैसे मेरा अगर आई डोंट नो, इट्स कॉल्ड बर्थ चार्ट बना हुआ, उसमें कुछ चीज़ें हैं. सो are you saying that we can also change that? Yes, you can. Which is written? Yes, you can. Okay. See, basically अगर हम, because we are Hindus, सनातन धर्म से हम ये बिलीव करते हैं कि हमारा पिछला जन्म भी था, ये जन्म भी है. कर्मा प्लेज अ वेरी बिग रोल. तो जब आप पैदा होते हैं, ऑब्वियसली ब्रह्मांड में कोई तो प्लैनेट कुछ तो कर रहा है. अब जब आप पैदा हो रहे हैं, सोचिए अभी कल बच्चा कोई पैदा हुआ, सन कहीं तो पोजीशन में था, या सोचिए मून कहीं तो पोजीशन में था, जुपिटर कहीं तो पोजीशन में था. इनकी पोजीशन भी बदलती है. अब सोचिए जब आप पैदा हो रहे हैं, इन सब की पोजीशंस क्या थी, वो डिसाइड करेगी कि जब आप उस फ्रीक्वेंसी में पैदा हुए हैं तो ये आपके ऊपर कैसे काम करेगा. अब एक चीज़ है, कैन वी चेंज इट. लाइक ऐसे से आपने कभी लाइफ में मेडिटेट नहीं किया फॉर एग्जाम्पल, या आपके कुछ एक्ट या हैबिट्स होंगे, बिहेवियर्स होंगे जो बचपन से लेके अभी तक हैं, आपने एकदम से डिसाइड किया कि हम ये बदल देते हैं. जैसे आप वो एक्ट बदलेंगे वैसे ही आपकी लाइफ की आधी से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी बदलने लग जाएगी. ओके, नाउ लेट इट बी से यू आर नेवर अ मेडिटेटर, पर अब आपने आधा आधा एक घंटा मेडिटेट करना शुरू कर दिया. अब जैसे ये 41 डेज करेंगे, आपका एक्सपीरियंस डिफरेंट होगा, आपका फ्रीक्वेंसी डिफरेंट होगी, तो आपके लिए ये बदलना शुरू हो जाएगा. सो दैट इज हाउ दे चेंज. इट्स नॉट दैट कि आप अपना बदल नहीं सकते हैं. चार्ट बदला जा सकता है, चीज़ें हो जा सकती हैं. जैसे किसी का अगर फायर एलिमेंट ज़्यादा अच्छा नहीं है, सूर्य नीच में ज़्यादा अच्छा नहीं है, तो हम एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम
हम नीच से ऊंच नहीं कर सकते, मतलब कोई बैड प्लैनेट जब आप पैदा हो रहे थे अगर इसमें था रेट्रोग्रेड पे था तो हम उसको घुमा नहीं सकते वापस, बट एट द सेम टाइम उसके होने वाले इफेक्ट्स को गुड डीड में कन्वर्ट करके इफेक्ट का कम कर जरूर ओके, बिकॉज आई थिंक आई हैव हर्ड दिस पीपल नो कि अच्छा इस टाइम पे एक एक्सीडेंट का कुछ दिख रहा है, लाइक आई थिंक पंडित्स टेल यू दैट एंड देन पीपल डू सम उपाय फॉर इट एंड देन दे डू इट, सो इज दैट ट्रू, लाइक दैट कैन हैपन, उपाय से वो हो सकता है? आप लाइफ जैसे हमने बताया, आप जैसे आए दिन की जिंदगी जीते हैं अपनी, उस पर निर्भर होता है आपका कल या परसों कैसा होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आप ऑफिस जाना छोड़ दें, ठीक है, तो आपको जॉब कैसे भी नहीं आएगी, पर अगर आप रोज मेहनत कर रहे हैं आज नहीं तो कल फलदायक जरूर होगी, ठीक है। आज समय के कारण नहीं फलदायक है, बट नॉर्मली फलदायक जरूर होगी। तो ये सेम तरीका होता है कि जब आपकी कोई चीज़ काम नहीं कर रही, जैसे सोचिए घर में अगर मम्मी पापा से लड़ाइयाँ चल रही हैं, पापा आपके फेवर में नहीं कर रहे, पर कल आपने पापा को उनकी फेवरेट शर्ट ला दी, कहीं ना कहीं तो आपका 10% काम बन गया ना। ये सेम प्लैनेट्स के साथ भी है, जो चीज़ आपके फेवर में नहीं थी आपने उसके हित में कुछ कर दिया जो उस प्लैनेट को पसंद है, तो कहीं ना कहीं आपके लिए वो बनेगा। जो चीज़ आप कभी नहीं करते और एकदम से करना शुरू कर देते, इट डज बिकम मेक्स अ डिफरेंस। लेट्स कम बैक टू क्रिस्टल्स नाउ। तो जैसे आई हैव रेड कि चक्रास होते हैं, राइट? देयर आर हाउ मेनी चक्रास? 7 चक्रास, राइट? सो आई थिंक क्राउन इज 1, हार्ट इज 1। एक्चुअल लाइफ में 114 चक्र होते हैं। 114 चक्र होते हैं, अच्छा। 2 को मिनिमाइज करके 112 पे आते हैं, बट अब लाइफ की सिंपल एस्पेक्ट आपके हमारे सब में समझने के लिए आए दिन की जिंदगी में 7 चक्र बेस्ट होते हैं, वही 7 चक्र पे चलता है। ओके, एंड क्रिस्टल्स एंड चक्रास आर हैव अ रिलेशन? यस, दे डू हैव अ रिलेशन। सी क्रिस्टल, चक्र, कलर थेरेपी, these all have a relation. Okay. And जैसे अगर आपने सुना होगा planets also resemble certain colors. Monday को आप blue पहनिए, Tuesdays को आप red पहनिए, Wednesdays को green पहनिए, they all have a interconnect. Okay. तो हर एनर्जी का एक उसमें अगर आप डेप्थ में घुसेंगे तो सब में इंटरकनेक्ट जरूर है, दैट वे। ठीक है, एंड वंस वी टॉक अबाउट, लेट्स से यू हैव क्लाइंट्स, राइट? सो लेट्स से वंस दे कम, सो सम पीपल, जैसे मेरी फैमिली में मम्मा ने बोला कि अच्छा इनसे बात करते हैं, एंड आई एम वेरी स्केप्टिक, मतलब मेरे को ये है कि नहीं, आई डोंट बिलीव इन दिस, सो विल दीज थिंग्स वर्क फॉर मी? देखिए, 2 चीज़ है। अगर इफ़ यू से आई डोंट बिलीव इन इट, हाँ, तो मैं बोलूँगी आपने तो पहले अपने जेल में हो, आप अपने दिमाग में। अगर मैं बाहर आपको दिखाऊंगी भी कुछ, अभी आप अपने दिमाग के जेल में, आप जहाँ तक देख रहे हैं ये कमरा देख रहे हैं, कल मैंने आपको बोल दिया नोएडा में एक पर्टिकुलर रेस्टोरेंट है, आप बिलीव ही नहीं करेंगे क्योंकि आप देखना ही नहीं चाह रहे हैं, ठीक है। आप देखना नहीं चाह रहे हैं तो आप गूगल नहीं कर रहे हैं। हम ये कहते हैं कि डोंट से आई डोंट बिलीव इन इट। आप या हम या कोई भी चीज़, डोंट पुट अ स्टैम्प ऑन इट, से लेट्स ट्राई। अगर आप किसी भी चीज़ के लिए बस ओपन है, 100% काम करेगा। ऐसा नहीं है अगर आप रोज स्कूल जा रहे हैं, बोल रहे मैं तो फेल होऊंगा ही, तो आप कितना भी पढ़ाई कर लो आपके दिमाग में नहीं जाएगा, क्योंकि आपके दिमाग में ही 365 दिन एक ही कहानी चल रही है। सो दैट्स व्हाई, बट एट द सेम टाइम यस, इफ यू आर जस्ट ओपन, okay, and also I'm getting a sense ki thoda sa this is also inclined towards manifestation also. That's a concept that people are talking about, and I think I also somewhat believe in it, because what I think is कि जैसे let's say I'm working towards something and I'm thinking कि अच्छा आज it's going to be a good day, it's going to be a good day, my energies would be somehow, it will be positive. And if I'm just thinking कि अच्छा this is a bad day, this is a bad day, you have that shift, right? Yes. You have that mood shift according to the things that you're thinking, right? Yes. So how is manifestation different from it, and how can someone maybe manifest something that they want? Well, there are multiple thousand ways of manifesting. I think in today's world, very easy it is to manifest. जो आप चाहें वो मिल जाएगा. But पहली चीज़, जैसे how you said that, you know, if you keep telling yourself how mood swings happen or how you get skeptical, one thing I would always say that 50% job is done by you only, and by nobody else. The day you say I can do it, 50% you have done the job. You don't even have to like put an effort. 50% करने के लिए आपको बस ready होना पड़ता है उस चीज़ के लिए, अपने दिमाग को. So that way. Secondly, when it comes to manifestation, देखो manifestation के 4 गोल होते हैं. 4 रूल्स है, मतलब गोल्स आपके स्टेप्स होते हैं, 4 स्टेप्स. ये 4 स्टेप अगर आपको ईजी हो गया लाइफ तो आपकी सॉर्टेड है. पहला स्टेप है से स्क्रिप्टिंग. फॉर मैं एग्जांपल दे रही हूँ. से स्क्रिप्टिंग आपको चाहिए 10 लाख रुपए, ठीक है. आपको लिख लेना है नोटबुक पे, ओके. ये नहीं लिखना है आई नीड, आई हैव.
सी मैनिफेस्टेशन कुछ नहीं है, बट मैनिफेस्टेशन का मतलब है लिविंग इन द प्रेजेंट ऑफ व्हाट यू रिक्वायर. ओके, इफ आई रिक्वायर 10 लाख, 1 करोड़, जो भी है, आई कांट गो टू द रोड एंड बार्गेन फॉर 20 रुपीज एंड वेस्ट माई 15 मिनट्स. यू गेट इट? जो 20 करोड़ कमा रहा है, 10 करोड़ कमा रहा है, उसके पास टाइम नहीं है 10 मिनट 20 मिनट वेस्ट करने का, क्योंकि वो अगला करोड़ उतने में कमा लेगा. सो फर्स्ट एक्ट लाइक व्हाट यू वांट. ओके, नाउ से आज मेरे पास नहीं है पर मुझे चाहिए 1 करोड़, सो आई एम प्रिटेंडिंग कि भगवान मेरे पास 1 करोड़ आपने दे दिया, थैंक यू. आप मॉल जाइए, लुई विटॉन के शोरूम जाइए, मत खरीदिए, जाइए देखिए क्या पसंद आया आपको. एक वॉलेट पसंद आया, उसका प्राइस देखिए, ये अच्छा ठीक है मैं लेती हूँ. ओके, एक्ट लाइक यू हैव गॉन देयर. यू हैव, यूनिवर्स को भी ये समझने की ज़रूरत है कि यू आर केपेबल इनफ. ओके, हम मांग तो बहुत लेते हैं पर केपेबल नहीं बन पाते. तो आपका पहला स्टेप होता है राइटिंग इन अ प्रेजेंट टेंस, स्क्रिप्टिंग. आपने जो चीज़ लिख दी है उसका छाप छूट गया है. Okay, writing is something that you have left the mark there. तो writing is first thing, but in the present tense. The moment you write your 10 points, 2 points, जैसे भी है, जितने भी दिन आप ये प्रैक्टिस करते हो. Second is feeling it. How do you feel when you have that 1 CR, 10 CR? How are you feeling? Okay, जैसा आपके पास होगा आपको वो फील करने की ज़रूरत है. अब मेरे पास अगर 10 करोड़ 20 करोड़ है, मैं भी, मुझे नहीं पता मुझे बंगला चाहिए क्या नहीं चाहिए, पर मैं वो देखना शुरू कर दूंगी. फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे विला खरीदना है तो मैं विला जाना शुरू कर दूंगी, देखना शुरू कर दूंगी, प्राइसेस देखना, सो दैट यूनिवर्स गेट्स इट. ये हो गया सेकंड आपका फीलिंग. इसको भी बोलते हैं विजन. आपका थर्ड है आपको विजन करना है. अब फॉर एग्जाम्पल 10 लाख रुपए या 10 करोड़ जो भी आप चाह रहे हैं वो आ गया, आप अगले दिन क्या करोगे? कुछ खरीदने जाओगे, ट्रैवल करोगे, टिकट बुक करोगे, कुछ भी करोगे, आपको वो एक्ट करना चालू कर देना. मैं ये नहीं बोल रही पैसे लगा देना, जाके टिकट ही खरीद लिया आपने, टिकट चेक करना शुरू कर दो. ठीक है, एयरपोर्ट अगर आप बहुत ट्रैवल करना चाहते हैं, एयरपोर्ट जाना शुरू कर दो, बस एयरपोर्ट ही जाओ, ट्रैवल करने की जरूरत नहीं है, इट विल इवेंचुअली स्टार्ट कमिंग इन. तो ये आपको विजन तक रखना ही है. कि उसके बाद एक आता है जो बहुत ही बड़ा मेन पॉइंट होता है मैनिफेस्टेशन में, नॉट बीइंग डेस्परेट. ओके, ठीक. अब सोचिए मैंने 1 महीना रोज़ प्रैक्टिस किया, मुझे 10 करोड़ चाहिए, 10 करोड़ चाहिए, 10 करोड़ चाहिए. 1 महीने के बाद फिर भी 10 करोड़ चाहिए, 10 करोड़ चाहिए कर रही हूँ. अब हो गया ना, आपने मांगा, आपने लिख दिया. आपको लेट गो करना सीखना पड़ेगा. आपको जो चाहिए आपने वो कार्य कर दिया है, संपूर्ण हो गया है, अब उसको साइड में रख दो, अब ऊपर वाले का कार्य है. ठीक है, आपको किस तरीके से वो देगा वो उसका कार्य है. अभी तक नहीं हुआ, अभी तक नहीं हुआ, अब होगा, ये नहीं है. ये नहीं करना है. आपको डेस्परेटनेस को छोड़ना पड़ेगा. दैट इज द मेजर थिंग अबाउट डी अटैचमेंट. यू हैव टू डी अटैच फ्रॉम द मैनिफेस्टेशन दैट यू आर डूइंग. डू द मैनिफेस्टेशन, कार्य करो, पर उसके पीछे मत पड़ जाओ कि पूरे दिन मैं मैनिफेस्ट कर रहा हूँ, नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, क्योंकि आपने अपना कार्य कर दिया, समय से आपको राइट तरीके पे मिल जाएगा. एंड मैनिफेस्टेशन के बहुत ट्रिक्स हैं. बहुत ओवरनाइट मैनिफेस्टेशंस हमने तो मतलब ओवरनाइट मैनिफेस्टेशंस किए हैं, एंड इट वर्क्स रियली वेल. ओके, सो दैट वे. एंड लेट्स से यू से कि मेरे को ये बार बार लिखते रहना है. इज कर्म, doing कर्म also for that is also important, right? Like I cannot sit at home for 43 days and be like कि मेरे पास 10 करोड़ रुपए है, 10 करोड़ रुपए, and I'm not, I've stopped my job, I left my job. ये सब तो नहीं ना, like you. हाँ देखिए, अब आपके पास 10 करोड़ रुपए है तो आप घर में देखो, एक सिंपल अंबानी सर की बात करते हैं. उनके पास 10, 20, 100 करोड़ हैं, ठीक, घर में नहीं बैठे ना. वो अब दूसरे 100 करोड़ के लिए काम कर रहे हैं. आपको काम करते रहना है, देने वाला वो है. आपको क्या चाहिए, आपको वो मांगना है, आपको वो एक्ट करना है. देने वाला फिर भी वही है. अब कई बार कहते हैं कि जैसे आपने चाय के लिए हमें पूछा, हमने बोला ना क्या पता कुछ और मांग लिया होता. आपको मांगना आपका काम है, करना आपका कार्य, करना आपका काम है, ब्लॉकेज हटाना और अच्छे तरीके से लाके देना उसका काम है. एंड समटाइम्स जैसे हमारे पास कस्टमर आता है, वी से ये पैसे वाला पत्थर है, देन दिल बी लाइक अरे तो जॉब छोड़ के घर पे बैठ जाते हैं. ठीक है, मैं आपके सामने खाना रख सकती हूँ, आपको चबा के आपके मुंह में नहीं डाल सकती. खाना तो आपको ही है, ऊपर वाला खाना आप तक देगा, खाना आपका कर्तव्य है. तो सेम तरीके से जॉब जाना, काम करना आपका कर्तव्य है. स्टोन्स के पीछे की एक साइंस होती है कि वो रिमूव कैसे करता है, बट हाँ वो आपको सिर्फ एक जरिया है, आपको बेहतरीन करके देगा. दैट वे. What is one problem that you see very commonly that people come to you for? I see. If you say in career and finance is a very big problem that I have, like most of people coming in. Love and extramarital affair is getting increased by day. Okay.
PCOD, PCOS and fertility increasing very much. And is that like can all of these things help PCOS and yeah. PCOD? How? So say PCOD and PCOS comes from your sacral chakra. Yeah. आपने पूछा था 7 चक्राओं Yeah, के yeah, बारे yeah, में. 7 चक्रा होते हैं. ये आपका सेकंड लास्ट चक्रा होता है, सेक्रल चक्रा. सेक्रल और सोलर प्लेक्सिस, नीचे वूम जो एरिया होता है वहाँ पे आपका सेक्रल रिसाइड करता है. स्वादिष्ठान स्वादिष्ठान चक्र, चक्र, हाँ. वो. सो बेसिकली आपको जो PCOD फर्टिलिटी इश्यूज होते हैं वो वहाँ से होते हैं. PCOD और PCOS का एक साइंस है. हम स्पिरिचुअलिटी में मानते हैं पहले फेमिनाइन एनर्जी जो औरत थी वो औरत थी, घर का केयर करती थी, टेक केयर करती थी, ख्याल रखती थी, प्यार देती थी, परवाह करती थी. आज वही औरत प्यार करती है, परवाह करती है, टेक केयर कर रही है, जो भी है, बाहर जाके मैस्कुलिन का काम भी कर रही है. क्या होता है कि जब आपकी बॉडी फेमिनाइन और मैस्कुलिन, शिव और शक्ति बैलेंस नहीं कर पाती, तब ये PCOD PCOS का प्रॉब्लम होने लग जाता है. आपकी बॉडी कंफ्यूज है कि अब मैं लड़की बनूँ या लड़का बनूँ, ठीक है, तो ये डिलेज होने लग जाते हैं या ओवरफ्लोज हो जाते हैं. तो जो आपके स्वादिष्ठान चक्र, मतलब जो आपके सेक्रल चक्र से रिलेटेड होता है, इसको थोड़ा पढ़ना पड़ता है. वहाँ के कुछ स्टोन्स यूज़ होते हैं, फिर ओवरऑल हेल्थ में होते हैं. इनसे इंटर रिलेटेड PCOD PCOS फर्टिलिटी से इंटर रिलेटेड हार्मोनल प्रॉब्लम्स भी होती हैं. तो हार्मोन के लिए भी एक स्टोन है. आपको पढ़ना पड़ता है कि एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या है. इसीलिए हम पहले क्लाइंट को कंसल्ट करना प्रेफर करते हैं कि आप 10 मिनट का फ्री कॉल ही ले लो हमसे, पर तकलीफ बताओ. आप हमारे पास मत आइए ये बोल के कि मैडम हमको पायराइड चाहिए या हमको वो चाहिए, क्योंकि आप सिर्फ उतना इस सीमित जानते हैं. क्या पता इससे बढ़ के भी कुछ है. तो गिव अनदर पर्सन अ चांस, सामने वाले को, और आप पूछिए. तो ये अब जैसे मैं ये नहीं बोलूँगी कि कल आपका बेबी नहीं हो रहा तो आप पत्थर पहनिए बेबी हो जाएगा. मैं वो आपको ही कार्य आपको संपूर्ण करना पड़ेगा, आप ही के फैमिली के लिए है वो काम. बट आप स्टोन्स जब पहनते हैं तो आपका वो एरिया बहुत हेल्थी हो जाता है, अच्छा हो जाता है. इसका एक और चीज़ है जो मैं बताना चाहूँगी. लाइक आजकल के आप बच्चे देखेंगे बहुत मिसकैरेजेस होते हैं. वूम एक ऐसी जगह होती है, कोख जो होता है वो एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे बच्चा 9 महीने के लिए रहता है. अगर टू बी वेरी ट्रूथफुल, नाउ डेज पीपल आर हैविंग मल्टीपल पार्टनर्स. ओके, पहले के ज़माने में मल्टीपल नहीं थे. अब क्या होता है कि लोगों के मल्टीपल पार्टनर्स हैं, दे इंडल्ज विद द रॉन्ग एनर्जी. Okay, when I say wrong energy, that means they are indulging with anger energy, upset energies, different energies. These all energy affects on your womb. Okay. औरतों की सबसे ज़्यादा एनर्जी, आदमियों के भी, उनके वूम में जाके लगती है. अब आपकी वूम तो हो गया वुंडेड, ठीक है. सेक्सुअल अब्यूज़ बहुत हुए हैं लोगों के साथ, फिजिकल अब्यूज़ होते हैं. नाउ फॉर एग्जांपल, एक लड़का है, उसकी गर्लफ्रेंड है, एक्स गर्लफ्रेंड मान लीजिए, उसके साथ कोई सेक्सुअल अब्यूज़ हुआ होगा बचपन में, ठीक है. एंड लड़का एंड लड़की आर टुगेदर टुडे. दिस गाय लीव्स दिस गर्ल एंड गोज एंड गेट्स मैरिड टू अनदर गर्ल. नाउ दिस गाय इज कैरिंग 4-5 पीपल्स एनर्जी. जो गर्लफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड का जहाँ से अब्यूज़ हुआ होगा, या फिर गर्लफ्रेंड के अगर पहले बॉयफ्रेंड्स रहे होंगे, या फिर बॉयफ्रेंड के पहले गर्लफ्रेंड्स रहे होंगे, उन सब का एनर्जी लड़के ने कैरी किया, अपनी वाइफ को में आया और ये वूम पे अफेक्ट हुआ. अब 9 महीना बच्चा वहाँ पे रहेगा. कल जब बच्चा निकल के आता है तो लोग सोचते हैं अरे इतना गुस्सा क्यों है, ये तो 1 साल का है, इसके साथ ऐसा क्यों हुआ. ये कहीं ना कहीं आपने उन वूंड्स को और अपनी वूम को क्लेंज नहीं किया हुआ है. आपने हेल्दी नहीं बनाया हुआ है. इसीलिए बच्चा के आने के टाइम पे आप देखेंगे जनरेशन्स में बहुत कैंसर्स हो जा रहे हैं बिना मतलब. लोगों को जैसे PCOD PCOS हो रहे हैं, लोग गुस्सा हो जाते हैं बच्चे. ये सब उनसे इंटरकनेक्टेड हैं. इसलिए आजकल डिलीवरीज बहुत फेल हो रही हैं, मिसकैरेज हो रहे हैं. I've also heard people talk about diabetes, right? Diabetes. So how is diabetes interlinked with this? See, I actually recently, I think I happened to meet somebody, not a very big person, हमको रोज़ चाय देता था. So he had a very, very big issue of diabetes. He is been taking insulin on a daily basis. There is a stone called malachite. Okay, very good stone for health. वेरी गुड स्टोन फॉर डायबिटीज़. ओके, देखिए हेल्थ का साथ कुछ आप जैसे आपने साइंस पूछा था, बेसिकली स्टोन का साइंस होता है. पहले तो इनके पीछे भी साइंस है. जो रिसर्च करने वाला है, जानने वाला है, 100% जान जाएगा, क्योंकि गूगल बाबा की जय. गूगल बाबा सब नॉलेज देते हैं. वो आपके ऊपर है आप कितना डेप्थ में जाना चाहें. और ये हर एक स्टोन के अंदर एक फ्रीक्वेंसी होती है. ओके, अल्फा डेल्टा गामा सबके अंदर एक एक फ्रीक्वेंसी होती है. स्टोन को बेसिकली जाना गया है नेगेटिव एनर्जी निकालने के लिए. जैसे हमने मेंशन किया, पुराने ज़माने में बूढ़े जो लोग थे वो पैदल चलते थे,
चप्पल नहीं पहनते थे, पहले सीमेंट नहीं हुआ करती थी, टाइल्स नहीं हुआ करती थी, ना मार्बल्स हुआ करता था, मदर अर्थ थी, प्रॉपर मिट्टी में चलते थे, घास पे चलते थे, और बिना चप्पल के सब चल रहे हैं। तो क्या होता है, आधे से ज़्यादा मदर और नेचर इज़ नोन फॉर रिमूविंग नेगेटिविटी। साइंस में देखा जाए तो ज़मीन जो होती है वो मैग्नेटिक होती है, जो सन होता है वो इलेक्ट्रो होता है, हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है। इसका मतलब मैग्नेटिक मतलब खींचना। अब हमारी जो नेगेटिव एनर्जीज होती है वो मदर अर्थ खींच लेती है। सेम वे ये मदर अर्थ के प्रोडक्ट्स हैं, ये मदर अर्थ के पत्थर हैं, ये कुछ नहीं करते आपकी पर्टिकुलर एस्पेक्ट से। जो सोचिए पैसा हो गया, प्यार हो गया, हेल्थ हो गया, जहाँ भी ब्लॉकेजेस होती है, हर बीमारी ब्लॉकेज है, जहाँ भी ये ब्लॉकेज होती है ये उसको वहाँ से खींच लेता है, ठीक है, वो ब्लॉकेजेस को, और आपकी ओपनिंग ज़्यादा बेटर हो जाती है। ये बेसिक साइंस है स्टोन्स का। Because when we talk about diabetes, right, sometimes what happens is people are generally, जैसे अगर हम type 1 diabetes की बात करते हैं तो the insulin is not being made in the body, and the science is that कि अगर insulin body में नहीं है so your sugar is shooting up, your sugar is going down, right? The insulin is not there to regulate it. So I personally believe कि वो तो I think that is treatable only medically, like you have to take an insulin. But for some cases, as you are talking about, so I think you also might have seen in your experience. But for me, I think diabetes के लिए ना I feel कि insulin is the only way. मतलब that अगर आप देखा जाए तो ना अभी तो डायबिटीज बहुत बढ़ गई है, ओके, बट मेडिकल इज दवाइयाँ, केमिकल्स, मेडिकल इज 100-150 ईयर्स ओल्ड, ज़्यादा पुरानी नहीं है अभी जनरेट है। उसके पहले क्या था? आपको याद हो, अगर बच्चे के दांत में दर्द है तो माँ लौंग रख देती थी। देयर समथिंग कॉल्ड किचन मैजिक। आपके किचन में ही इतनी हर्ब्स हैं जो आपको इंटरनली एंड इवन एक्सटर्नली, मतलब पैसा भी, अट्रैक्शन पावर भी, और जो इंटरनल बीमारी है उससे भी ठीक होता है। अब क्योंकि अगर आप हमारे पास आते हैं, आप अपनी तकलीफ हमसे बेहतर जानते हैं, हम ये बेभरोसा करते हैं, हम किसी को नहीं बोलते कि हम ज़्यादा जानते हैं। आपको पता है आपकी डायबिटीज़ की कितनी तकलीफ है, हम ये नहीं बोलेंगे कि आप डॉक्टर के पास मत जाइए, आप इंसुलिन मत लीजिए, आप अपना कार्य कीजिए, पर साथ में इस ऑल्टरनेटिव हीलिंग्स, इनको ऑल्टरनेटिव हीलिंग्स में जाना जाता है, ऑल्टरनेटिव हीलिंग्स को भी चांस दीजिए, क्योंकि ऑल्टरनेटिव हीलिंग्स एक ऐसी हीलिंग है जो एवर एग्जिस्टिंग है। मेडिकल हीलिंग्स अब आई हैं, बट हॉलिस्टिक एक ऐसी चीज़ है जो अब से नहीं, बहुत पहले से है। इफ़ यू टॉक अबाउट टैरो, ठीक है, टैरो इज़ अ कॉन्सेप्ट जो मैंने ना आई थिंक गूगल पे ही देखा था, एंड गूगल पे यू गेट वो फ्री टैरो, अगर तुम ऐसे डालो सो यू गेट इट, राइट। एंड उसमें फिर उसने अकाउंट मांगा, मैंने कहा नहीं, अकाउंट नहीं बनाऊंगा मैं, इतनी मेहनत नहीं करूंगा मैं, राइट। सो आई वांट टू अंडरस्टैंड फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज टैरो, एंड आई एम वेरी स्केयर्ड टू गेट अ टैरो रीडिंग डन। आई डोंट नो व्हाई, बिकॉज मेरे को ऐसा लगता है कि कभी कभार कुछ नेगेटिव निकल गया, सो दैट इज अ स्केयर, राइट। सो टेल मी अबाउट टैरो, टेल मी ऑल अबाउट टैरो। See, tarot is basically a set of, say, particular cards. टैरो में दो तरीका होता है, एक होता है मेजर आर्कानास, एक होता है माइनर आर्कानास। सिमिलर तरीका जैसे न्यूमरोलॉजी पकड़ लीजिए या एस्ट्रोलॉजी पकड़ लीजिए, एक होता है आपका बर्थ चार्ट और एक होता है जो आए दिन का कार्मिक चार्ट। कार्मिक चार्ट। अभी क्या कहते हैं, न्यूमरोलॉजी लाइफ पाथ नंबर, आपका मूलांक, ओके, ये दो एस्पेक्ट है। सेम तरीका टैरो भी पकड़ लीजिए। कुछ होते हैं माइनर जो आए दिन में आप किस तरीके के हैं, क्या आपको बदलना चाहिए, कैसी होगी ज़िंदगी, वो बताता है। मेजर जो 100% होगा ही होगा, ठीक है, जो बदला नहीं जा सकता, कुछ 100% है, कुछ बदला जा सकता है, वो है। टैरो कार्ड बहुत अच्छा है आपको ऐसी प्रॉब्लम के लिए जो आप सोच रहे हैं कि कैसे हील करूं, लाइक सोचो जॉब नहीं मिल रही 6-8 महीने से, कोई भी आए दिन की तकलीफ हो, डाउटफुल हो, 6-8 महीने की प्रॉपर्टी खरीद रहा हूँ, 50 लाख 1 करोड़ रुपए डाल रहा हूँ, इज इट राइट और नो, वो हो जाता है। आपको किसी चीज़ की गाइडेंस देने में टैरो कार्ड्स आर वेरी नाइस। इनफैक्ट द बेस्ट पार्ट अबाउट टैरो कार्ड्स, इट टॉक्स अबाउट अदर्स एनर्जी। तो आजकल का जैसे हमने टैरो कार्ड्स हम भी देखते हैं जब, तो वैसे तो ऊपर वाले की कृपा से हमको टैरो कार्ड गिफ्ट है, हमने कभी सीखा नहीं, ना ही किसी ने पर्सनली सिखाया, ऊपर वाले ने डाउनलोड दे दिया तो हो गया। ऐसा है, और ऊपर वाले की वजह से आज तक वी हैव नेवर हैड अ रॉन्ग रीडिंग ऑल्सो। बट एट द सेम टाइम टैरो कार्ड्स कैसे होते हैं कि सबसे पहले ये इटली में शुरू हुआ था, इटली, फ्रांस, स्पेन साइड पे, वहाँ पे शुरू हुआ था टैरो कार्ड्स के ये। बट आपकी साइकिक इंट्यूशंस,
कितनी अच्छी है, आपकी थर्ड आई जितनी अच्छी है, आप उतनी ज़्यादा अच्छी रीडिंग कर पाएंगे। Okay. हमारे टैरो कार्ड्स में हम नहीं बिलीव करते कि हम एक कार्ड खोलेंगे या 3 कार्ड खोल के किसी की ज़िंदगी का समाधान देंगे। हम प्रॉपर आपको एग्जैक्टली बताएंगे क्या प्रॉब्लम है, क्या बदलना चाहिए, सॉल्यूशंस देंगे कि कैसे बदलेंगे। Okay, there are solutions too for that. हाँ हाँ Okay. देखिए मैं एक बात बता दूँ, लाइक आप अगर मेरे पास टैरो कार्ड के लिए भी आएंगे तो मैं सबसे पहले ये बोलती हूँ, तकलीफ तो आप भी जानते हो, तकलीफ की कहानी सुनने का फ़ायदा नहीं, मैं आपको डायरेक्ट सोल्यूशन देती हूँ। बट अगर आपको कहानी सुनने का शौक है तो मैं ज़रूर बताऊँगी। आखिरी में मेरा काम ये बनता है एज अ हीलर कि आपकी लाइफ को कहीं ना कहीं से मेरे से जब आप मिल लेते हैं, इसके बाद मैं बेटरमेंट कहीं ना कहीं हो, भले 0.1% हो, बट कहीं ना कहीं बेटरमेंट आनी चाहिए आपकी लाइफ में हमसे मिलने के बाद। तो हम आपको रेमेडीज़ भी देंगे कि क्या करना है, कैसे नहीं करना है। बट सेम वे जैसे बहुत टैरो कार्ड रीडर्स को आप देखेंगे जो दूसरों से कार्ड पिकअप करवाते हैं, Okay. हम नहीं करवाते। Okay. ये हमारे कार्ड्स हैं, हम चैनल है, भगवान ने हमको चूज़ किया चैनल आपका जवाब देने के लिए। अगर आप हमारे कार्ड्स को छूते रहेंगे, इसमें आपकी एनर्जी आती रहेगी, आपकी एनर्जी आएगी उतना जितना हमारे साथ रेजिनेट करता है उतना नहीं करेगा। Okay. जो आपकी चीज़ है वो आपकी चीज़ है। सेम तरीके से अगर हम इसमें ही हैं तो हम गेम नहीं खेलते, ठीक है। आप एक उठाओ, यहाँ से उठाओ, वहाँ से उठाओ, वो सब नहीं करते। हम आपके उसमें नाम से हम ही खोलेंगे, एग्जैक्टली बताएंगे और आपको रेमेडी बताएंगे, तरीका बताएंगे, हाउ टू डू इट। Can we do a tarot reading right now? 100% यस Yeah. यस Let's do it then. ओके ज़रूर। So, like, how will it go? Like, will it be for me or will it be for my venture? What will it be like? What do you want to know? Do you want, or what do you want the viewers to know? Do you want the viewers to know about your venture? Yeah. Or do you Yeah, want... I think venture can be tracked very easily, right? हाँ, Venture, they 100%, can the growth can be हाँ, tracked very tracked very easily. easily. So let's do that. So you want to know how, and you're the sole owner Yeah. of this, right? Yeah, You're the yeah. owner of the... Yeah. So we can see how your outcome is going to turn out with your venture. Okay, makes sense. Okay. Give me like 2 minutes. Let me Yeah. cleanse, energize my cards. Okay. So these are crystals that you are using to. Yes. Can you talk in between? Yes, Okay, 100%. Okay. Yes, these are crystals. And the best part is for a lot of tarot readers, we also teach, बहुत सारे tarot readers candles ये सब use करते हैं। इसका एक तरीका होता है, अगर readers चाहें they can also use, okay? I have never seen a reader using it, that's why I opt to it. This particular stone is known as selenite. Okay. Selenite helps in cleansing. Okay. क्लेंजिंग मैंने जैसे समझाया, नहाना, कोई भी चीज़ की नेगेटिव एनर्जी निकालने के लिए क्लेंजिंग। तो हम इसको पहले अपने कार्ड्स को क्लेंज करते हैं। Okay. उसके बाद ये पर्टिकुलर स्टोन मेरे मास्टर ने मुझे, जब मैंने रेकी में इन्वॉल्व हुई थी पहली बार लाइफ में, तब उन्होंने मुझे ये गिफ्ट दिया था। तो ये हमारे साथ तब से चला आ रहा है। इट्स मेड इन ब्लैक टर्मलिन, एनर्जाइज बाय रेकी, ओके, एंड वी प्रोटेक्ट आवर कार्ड्स विद ब्लैक टर्मलिन, ओके। Now this is pyrite. Pyrite is used for money, but amazing stone for intuition and I think psychic work. this stone has gotten a lot of popularity Yes, in yes. recent times. Pyrite. People ne, I think they've just connected with money and they started wearing it. I Yes, think. खुद yes, से. 100%. हाँ. Loads of people are using it for money, and they are seeing the vast difference. And is it okay to just like go out there and just buy a crystal like? See, as I said, one thing I will always suggest, if you don't have much knowledge, because one single stone comes in 10 different forms. Okay. आपको दिखेगा ऐसा ही सब कुछ, ये स्टोन सारे स्टोन्स ऐसे ही दिखने में होंगे, बट इनमें 10 कैटेगरीज आती हैं। ओके, दिखने में सिमिलर दिखते हैं। एक होता है कम्प्लीटली डुप्लीकेट, जिसको कलर कोड करके हीट करके यूज किया जाता है। फिर कुछ स्टोन्स होते हैं, मान लीजिए एक बहुत बड़ा पहाड़ है, तो कुछ यहाँ से बने हैं, कुछ यहाँ से बने हैं, कुछ बीच के पार्ट से आए हैं। जो बीच के पार्ट से आया, जो एक्सपोज नहीं हुआ, जो एकदम सिक्योर्ड है, वो ज़्यादा पावरफुल होता है। Okay. तो हम कहते हैं कि बाहर से तो मतलब आप खरीदिए, खरीदने का कोई प्रॉब्लम नहीं है, इट बिलोंग्स टू एवरीबडी, बट एट द सेम टाइम नॉलेज के बिना मत खरीदिए, क्योंकि ये स्टोन्स बेटरमेंट लाने के लिए हैं। और अगर आपको सही में नहीं पता है कि क्या सही है और क्या गलत, देन इट कैन बी लाइक कि आप प्यार वाला पत्थर लेके आ गए ये सोच के कि पैसा देगा, और बाद में बोलते हैं अरे पत्थर तो काम नहीं करेगा, तो मतलब प्यार मिले जा रहा है। हाँ, नहीं, क्योंकि देखिए आप पैसा सोच के लाए थे, तो प्यार आपके दिमाग में है ही नहीं, ठीक है। अब आप बोल रहे हैं यार पैसा नहीं आ रहा है, पैसा नहीं आ रहा है, हम तो पत्थर पे नहीं विश्वास करते, हमने लेके आए। आप इसलिए नहीं विश्वास करते क्योंकि आप जब नया लेके आ रहे थे
एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आपने वो नॉलेज ही नहीं गेन किया कि किस तरफ से इस्तेमाल करना है, कैसे रखना है, दैट वे. सो या वी एनर्जाइज. दिस इज ऑल्सो अ स्टोन वेरी गुड. पैसों के लिए ही नहीं, ये इंट्यूशन के लिए बहुत अच्छा है. आप टैरो कार्ड्स रीडर हैं, आप साइकिक करते हैं, ऑरा करते हैं, वेरी गुड स्टोन टू हाइटन योर थर्ड आई. साइकिक के लिए बहुत प्यारा स्टोन है. And then there is this one of the most rare kind stone. It's called moldavite. Okay. It's the pure natural glass generated by Mother Nature. Okay. It's not a man-made. Only glass that is nature has made is moldavite. It comes from a meteorite. Okay. Okay. मतलब सोचिए meteorite कहीं से आके लग गया and it generated this. As I said, this stone can help you with psychic ability, astral travel, spiritual enlightenment, और आपको आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस, मेडिटेशंस के लिए, एस्ट्रल ट्रैवल के लिए, टेलीपैथी के लिए बहुत अच्छा हेल्प करता है. सो दैट वर्क्स प्रीटी वेल. सो दैट्स व्हाई वी क्लेंस अब 2-3 कार्ड्स में. सो इट वर्क्स क्वाइट वेल इन दैट. ओके. सिद्धांतम और वेंचर का यही नॉट नोइंग पॉडकास्ट. हाँ. Not knowing podcast. So we'll see how are you going to do Okay. with not knowing podcast. Okay. Okay. One second. Yes, I'll pick it up. Okay. See, what we say is कि कुछ कार्ड जब फ्लिप आउट होके गिरते हैं, इट्स अ डिवाइन कॉलिंग. मतलब वो आंसर आना ही आना है. दिस कार्ड जस्ट फेल डाउन. Okay. मैंने फिर से उसके अंदर डाला, शफल किया, व्हेन आई ओपन इट वाज द फर्स्ट कार्ड. Okay. सो दैट वे कि मतलब भगवान को दिखाना ही दिखाना है आपको, तो दैट इज़ वाई. अच्छा, देखिए, रीडिंग शुरू करने से पहले 2-4 चीज़ें दिमाग में रखनी चाहिए. जैसे हम रीडिंग कर रहे हैं, 10 कार्ड्स हैं. Maybe one of the other cards are not for you. If it is not for you, don't think about it. Let it go. Okay. So we say keep what resonate, let go what's not. Okay. I'm going to tell you about your soon past, present, and soon future energies within you and in your surrounding. Reading is going to be from 3 to 6 months. Max goes up to 8 months. Even 10 months because God is not wearing a watch. Okay. ठीक है. But ये जो हम बता रहे हैं आपको. There was a fun line though. God is not wearing. Yeah, God is not wearing a watch. तो मतलब 1-2 महीने आगे पीछे हो सकता है. प्रेशर मत डालिए उनके ऊपर टाइप्स. और क्या कहते हैं ये आपके. अच्छा, just one thing before starting. When the cards fell down, right? So didn't they have to be cleansed again? No. So like say I cleanse the cards and I'm shuffling the cards. Okay. While I'm shuffling the cards, I'm energizing by your side. Like say आपकी energies अपने cards में मैं fill कर रही हूँ. While I'm shuffling, God is ऊपर नीचे कर रहे हैं तो वो गिर जा रहे हैं. वाइल इट इज़ फॉलिंग डाउन, इट इज़ शोइंग एन इंडिकेशन कि भगवान कुछ बताना चाहते हैं. पर जब 5-10 कार्ड गिरते हैं तब हम अक्यूमुलेट करते हैं. जब 1-2 स्पेसिफिक कार्ड गिरते हैं इसका मतलब है इट्स अ डायरेक्ट मैसेज. पर टैरो कार्ड में क्या होता है, आप मुझसे रीडिंग लीजिए या फिर किसी भी दूसरे जो हुएवर इज प्रीटी गुड विद इट, आपके कार्ड सिमिलर आएंगे. ओके. आपके कार्ड बदलेंगे नहीं. बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि 2, 4, 5 कार्ड सिमिलर आए. पर अगर आप यही क्वेश्चन 5 बार, 6 बार, 10 बार करवा रहे हो, आप भगवान के साथ गेम खेलोगे, वो आपके साथ गेम खेलेंगे. ही विल नॉट गिव यू द राइट आंसर बिकॉज यू आर नॉट गेटिंग कंटेंट एनीवेयर. सो दैट वे. तो जब ये नीचे भी गिर जाते हैं, अगर आप उसे टच करते हैं, आपने उठा के, हाँ, इसलिए मैंने बोला कि मैं उठा के दे देती हूँ. अगर आप मुझे उठा के देते वो कार्ड्स, ठीक है, तब मैं जरूर क्लेंस करती. इसलिए बिकॉज आई नेवर लेट एनीबडी टच माई कार्ड्स एनीवेज. सो दैट वे. बट इसमें आपकी एनर्जी है, वी हैव एनर्जाइज, सो दैट वे इट वर्क्स. ठीक है. जैसे मैंने आपको बताया, कुछ आपको लगता है अगर आपके लिए नहीं है तो लेट इट गो. थोड़ा सून पास्ट, प्रेजेंट, सून फ्यूचर के बारे में थोड़ी रेमेडी क्या ध्यान में रखना चाहिए. दैट अबाउट योर आउटकम विद योर पॉडकास्ट, हाउ इज इट गोइंग टू टर्न आउट फॉर यू. ओके. पहली चीज़, अगर आप किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं,
अगर आपने एफर्ट्स किए हुए हैं बट यू आर वेटिंग फॉर एन आउटकम, यू हैव अ वेरी गुड विक्ट्री न्यूज़ कमिंग टूवर्ड्स यू. Okay. If you haven't received it yet, it is coming in for you. In Okay. fact, a news that is going to make you happy. मतलब कोई चीज़ का आप लंबे समय से इंतज़ार कर रहे हैं, आपके लिए आ रहा है. एक चीज़ है, सबको सब बात नहीं बताते. ओके तो हम ज़रूर ये बोलेंगे कि लाइक आप जब पॉडकास्ट कर रहे हैं या चीज़ें कर रहे हैं, सबको सब बात नहीं बताने की ज़रूरत है. इंसान बहुत ही प्यारा है मुंह पे, पर पीछे छुरा भूकने के लिए रेडी है. ठीक है. What do they say? एड़ा खा के पेड़ा नहीं, पेड़ा खा के एड़ा बना देना या something like that can be very possible for you, where people are pretty nice on the face but not actually being that nice. So be careful from people like that. Okay. आपकी लाइफ में जो जो डिले हुए हैं आपके पॉडकास्ट को लेके या चीज़ों को लेके, all those delays will be proven necessary. The reason they delayed is because you are going to get a better and a stronger outcome coming in for you. Okay. ठीक है. तो मतलब जो नहीं हुआ वो बेहतरीन लेके आने वाला है, तो आपके लिए अच्छा काम करेगा. एक चीज़ है, आप ओवर थिंकिंग कर सकते हैं. It's very much possible that you're an overthinker. Yeah. A lot of very much possible that sometimes negative thoughts generate. और कई बार ऐसा हो सकता है कि कोई बड़ा मसला नहीं है, पर दिमाग ने एक मसले को बहुत बड़ा बना दिया, एंड नाउ यू आर स्टक इन दैट. Okay, so it's very much possible that you can get stuck between your own thought processes, your own overthinking, and this. You need to make sure that your brain is in the control, your internal has matched with the external. Okay. Offer आने वाला है आपको कोई एक अच्छा. मतलब ऐसा, I think so. We can say that. हाँ, आपको कोई अच्छा ऑफर आने वाला है, और ऐसा ऑफर आने वाला है जो आपको अंदर से खुशी देगा. ठीक है. मॉनेटरली मतलब सबका अलग अलग होता है. किसी को पैसा खुशी देता है, किसी को किसी का आना खुशी देता है. आपके पास खुशी का ऑफर आने वाला है. जैसे मैंने आपको पहले बताया कि डोंट टेल टू मैनी पीपल अबाउट योर थिंग. आई विल स्टिल टेल यू, ज़्यादा लोगों को मत बताइए. जो बात है, थर्ड पार्टी की वजह से चीज़ें साबोटाज होना बहुत ही पॉसिबल है. मतलब अगर आप कुछ बड़ा कर रहे हैं, आपने किसी को बता दिया, इट इज़ वेरी मच पॉसिबल, आप नज़र मान लें या कुछ भी मान लें, थर्ड पार्टी साबोटाज ज़रूर कर सकती है चीज़ें. आपको अपने ये कमिंग टाइम में याद रखना चाहिए, थोड़ी स्ट्रेंथ, करेज, पावर, मोटिवेशन की ज़रूरत है चीज़ें आगे करने के लिए. यू नीड टू वर्क ऑन योर फायर एलिमेंट. थोड़ा और ज़्यादा काम कीजिए, ये कीजिए, आपके लिए 100% वर्कआउट. आपके पास कोई इनफैक्ट ऐसा ऑफर आने वाला है जिसका आप लंबे टाइम से वेट भी कर रहे होंगे. ओके, जो आपको इमोशनली बहुत हैप्पी करेगा. अगर आप ये स्पैन में कुछ मैनिफेस्ट करना चाहें, अपनी कंपनी के लिए किसी को बुलाना चाहें, कुछ करना चाहें, इट्स वेरी मच पॉसिबल. इट इज़ कमिंग इन फॉर यू. वेरी गुड टाइम टू मैनिफेस्ट. पर एक है, जब लाइफ में आप अपने करियर को लेके, अपने काम को लेके अटक जाते हैं कभी भी, टेक अ look at it from a third party point of view. Don't look at it while being in the problem. मतलब you need to take a step outside from the problem in order to analyze and solve the problem. Okay. कई बार क्या होता है, इंसान उसी प्रॉब्लम में अटका रहता है, क्या करूं. अगर आपको क्या करूं सोचना है, तो आप तीसरे इंसान की तरफ से सोचिए, आपको आंसर ज़रूर मिलेगा. Secondly, when it comes to the podcast is something that you were meant to do. Okay, like it's like जैसे हमारे लिए, हम बहुत मानते हैं, हम यही इसी चीज़ के लिए पैदा हुए थे, स्पिरिचुअलिटी के लिए, आध्यात्मिकता के लिए. और आपका जो कनेक्शन है वो पॉडकास्ट के साथ बहुत अच्छा है. इनफैक्ट इट इज़ वेरी मच पॉसिबल दैट कहीं ना कहीं आप पहले स्पीकर होंगे या कुछ ऐसा होगा. आपका और आपके पॉडकास्ट का मिलन, लाइक यू गाइज आर मेंट फॉर ईच अदर टाइप्स. सो इट्स अ प्रिटी गुड वन. यू आर एट अ वेरी गुड प्लेस. प्लस इमोशंस को थोड़ा कंट्रोल में रखिए. वेरी मच पॉसिबल यू आर वेरी हैप्पी, देन यू आर वेरी सैड. सो अप एंड डाउन ऑफ इमोशन हैपन्स रियली बिग, बट एट द सेम टाइम ऑल्सो पीपल कैन टेक फ़ायदा ऑफ योर वनरेबिलिटी. ओके, तो जो लोग मतलब आपका अच्छाई का फ़ायदा उठाना बहुत जानते हैं, तो उससे आप थोड़ा वॉच आउट कीजिए, उससे थोड़ा केयरफुल रहिए. ठीक है. बाकी मैनिफेस्टेशंस आर कमिंग ट्रू, आपकी चीज़ें होंगी. ओवर थिंकिंग पे आपको थोड़ा ध्यान देना चाहिए. ओवर थिंकिंग थोड़ा कम कीजिए, एंड अपने आप को थोड़ा प्रोटेक्शन में रखिए. ओके, थोड़ा आगे पीछे. ऐसा हो सकता है कि सामने वाला जलस हो, पीछे बताया ना जैसे अच्छा बन के वो छुरा भुकना, दैट नहीं. तो आपके और आपके पॉडकास्ट की ग्रोथ बहुत अच्छी है.
आपके पास ऑफर आ रहा है, आपके पास विक्ट्री गुड न्यूज़ आ रही है, ठीक है, मैं मॉनिटरी का बात नहीं करूँगी बट अंदर से खुशी तो बहुत आ रही है. ओके, सो दैट वे, सो यू आर गोइंग टू डू प्रीटी वेल एज वेल. प्रीटी गुड रीडिंग है. मतलब मेरे को तो डर लग रहा था कि कुछ कुछ ऐसा ना हो जाए जो मैं आई कांट फिक्स और समथिंग, बट नहीं, प्रीटी गुड रीडिंग आई थिंक. नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा कि यू कांट फिक्स. देखिए हर चीज़ का सोल्यूशन है, नथिंग इज इम्पॉसिबल. बिकॉज अगर कुछ बहुत ही लाइक इफ इट वुड हैव बीन अ वेरी वर्स रीडिंग, सो व्हाट कुड हैव बीन अ सॉल्यूशन, प्रोबेबल सॉल्यूशन? see the worst reading that I see is a lot of people who are in a relationship but when I open and it shows कि खत्म हो जाएगा, नहीं रहेगा. तो जब हम इनिशियली न्यू थे तब तो हम स्वीट कोट करके बता देते थे, बट अब जब एक्सपीरियंस हमको पता ही है, बिकॉज हमारे खुद के क्लाइंट्स हमें कॉल करके बोलते हैं कि मैम आपने जो बोला था हो गया, तो हमें पता है कि दैट इज़ दैट. तो दैट इज़ क्वाइट डिफ़िकल्ट रीडिंग. अनदर एक दो ऐसे कार्ड्स होते हैं जिसपे यू नो बाहर से दिखने में कुछ और अंदर से कुछ और, इनर वूंड्स के कार्ड, वो थोड़े मुश्किल होते हैं दैट यू नो उनको फिक्स करना, बिकॉज इनर वूंड दिखती नहीं है तो आपको पता नहीं कौन से लेवल एंड स्टेट में है दैट. एंड बाकी जैसे ये ओवर थिंकिंग का हो गया, कई ऐसे होते हैं कि ओवर थिंकिंग करके आप खुद के शरीर को या फिर आउटकम को नुकसान देने वाले हो, वो कार्ड्स भी थोड़े होते हैं. डेविल एनर्जीज होती हैं जो थोड़ी स्कैरी होती हैं, मतलब आपको प्रोटेक्शन करना पड़ता है. सो दैट इज क्वाइट अ थिंग. So I have a ethical question for you. Okay, so let's say a person is coming to you, he or she is talking about relationships, finance, family, right? These are problems that are very personal to a person, right? And when they are coming and opening themselves to you, you kind of have or anyone who's doing this, not particularly you, they kind of have a hold on them, right? Because whatever you are telling me, I'll take it up and I'll go back home and I'll start working on it, right? So do you think ethically, if I'm telling something to someone, right, and they're working towards it, don't you think you also have a kind of hold on them that you can get something done from them? Well, when you are in such profession, okay, I don't think देखिए अगर आप मेरे दोस्त हैं और आपने मुझे अपना सीक्रेट बताया तब मैं आपका फ़ायदा उठा सकती हूँ, पर मैं दिन में 1000 तकलीफ़ें सुन रही हूँ, मैं किसकी तकलीफ से क्या फ़ायदा उठा दूंगी. ओके, सेकेंडली मेरा काम ही है मतलब तकलीफ को यू नो सॉल्व करके देना. अगर आपकी तकलीफ़ें नहीं होंगी तो हम क्या सॉल्व करके बैठेंगे यहाँ पे. हैविंग अ होल्ड ऑफ समबडी, नहीं. वाई? बिकॉज अगर आप पर्सनल लेवल पे होते हैं कि दोस्त हैं, परिवार वाले हैं, आपने तकलीफ शेयर कर दी, तब आई कैन हैव अ होल्ड. ओके, आप मुझे जो तकलीफ बता के जा रहे हैं, ऐसी तकलीफ मैं दिन में 100 सुन रही हूँ. ओके, मुझे किसी का होल्ड में नहीं मिलेगा. बट मेरे लिए क्या बेस्ट पार्ट होता है कि जब मैंने अगर आपकी रीडिंग कर दी या कुछ किया और आप थोड़े रिलीफ हैं, मेरे लिए वो बेस्ट है. ठीक है. और एक होती है वाइब 100%. आप जब किसी को मिलते हैं, देखते हैं, आपको लगता है भाई इट इज़ जेन्युइन. ये है स्पिरिचुअलिटी, टैरो कार्ड, क्रिस्टल, सबका बेस यही है. वो वाइब नहीं है ना अगर आपके वो उसमें. एंड बाय वाइब यू मीन वाइब्रेशन, राइट? Yes, yes. नॉट जस्ट द कॉलेज वाला वाइब. नो, कॉलेज वाला वाइब का फुल फॉर्म ही वाइब्रेशन है. उन्होंने वाइब्रेशन को शॉर्ट फॉर्म करके वाइब हो गया है, बट द फुल थिंग इज अबाउट वाइब्रेशन ओनली. दे आर ऑल वाइब्स एंड वाइब्रेशन दैट आई जनरेट कैन बी अ नेगेटिव वाइब्रेशन और अ पॉजिटिव वाइब्रेशन. व्हाइल यू गेट इट, you can feel negative towards me or positive. This becomes vibrations. How's the vibration that you're feeling right now? Oh, nice. That's why I said no. We have been going on and talking. Yeah. So yes. Yeah. Okay. So, is there something that you specifically want to talk about in this field? Because I feel how I look at it is, just say you said to look at a thing from the outside perspective, right? I see, like I'm sure that you are good at what you are doing, and I also feel that talking to you, I also feel that somewhat I was also during the whole conversation I was getting very touched emotionally, and then I was lifted up and then brought down while the reading was happening. So I'll be very honest with you. There are also scams running in this industry, right? A lot of people are scamming people just because, जैसे मैंने अभी I touched this aspect of taking advantage of people vulnerability, right? So I can gift you something or I can tell you something, and then you'll keep coming back to me because you get that innate sense of pleasure from me, maybe how I talk or how I treat you, right? So what do you feel that you are doing right apart from those scams that are running in the market? Okay. See, basically, I've seen loads of bloggers. Certain people, I have seen their podcast. When you ask them, do you believe in stone? They say no, but after 2 months, they have a website on stones. And literally, like, see, what I mean is, हम सारे यही स्पिरिचुअलिटी में है, सबका अपना अपना फोटे है करने का. पर
देखो जिन जिन को बेचना है हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं किसी का बेचना, बट व्हाट वी डू डिफरेंट इज एज आई सेड कि इतना मार्केट स्टडी करने के बाद द रीज़न वी चोज दिस फील्ड इज़ बिकॉज ऑफ द नॉलेज दैट वी हैव इन इट। सेकेंडली हम कस्टमर्स एंड क्लाइंट्स को एक ऑप्शन देते हैं हमारे ग्रुप का पार्ट होने के लिए, जहाँ हम फ्री में सिखाते हैं आपको खरीदना खरीदो, नहीं खरीदना मत खरीदो। पढ़ाई, नॉलेज, गेनिंग, अवेयरनेस सबके लिए आइए, फ्री में मिल रही है, लेके जाइए। सेकेंडली अब आपने सोचिए कहीं से आज मेरे को मालूम है दिन में 100 200 हजार सेल्स परचेज हो रही है वेबसाइट से, पर आप कभी भी कॉल बैक करेंगे ना, यू कैन नेवर गेट अ होल्ड ऑफ द हीलर। Okay. आई थिंक दैट इज वेरी अनफेयर। Okay. Okay. Are you in touch with your clients personally? Yeah, very personally. If I don't have time for you, I will tell you कि sir, I am busy for this many days, but I will give you a call. And every single client of mine, I am like, मुझे बल्क क्लाइंट नहीं चाहिए 1000 5000 2000, मुझे क्लास मतलब हमारे को एक नीश क्राउड चाहिए एक क्लाइंट का, कि जहाँ पे आप हम पे ट्रस्ट कर रहे हैं, हम आप पे ट्रस्ट कर रहे हैं, और मेरा काम आपकी ज़िंदगी में बदलाव लाना ही है। मेरा काम आपको बेच के ख़त्म कर देना नहीं है। सो हम मतलब हमारे पिताजी भी यही बोलते हैं, सैलून, डेंटिस्ट, टेलर और पंडिताई, ये 4 एक ऐसी चीज़ें होती हैं जो इंसान परिवार के लिए रखता है। यू हैव अ फैमिली डॉक्टर, यू हैव अ फैमिली डेंटिस्ट, फैमिली टेलर, फैमिली सैलून एंड अ फैमिली प्रीस्ट। सो सेम तरीके से ये काम एक टाइम का नहीं होता, ये आपका लंबे समय का होता है। तो हमारा सबसे बड़ा स्कैम का प्रॉब्लम यही है कि हम देख रहे हैं कि लोग अपने क्रिस्टल्स बेच रहे हैं लो क्वालिटी। हाँ, एक बहुत बड़ा स्कैम हो रहा है मार्केट में, लो क्वालिटी स्टोन्स को सर्टिफिकेट्स के साथ बेचा जा रहा है। Okay. Okay. There are certifications for these stones? Yes. Now Okay. that's the problem. That is my biggest problem. Okay. Who am I to tell if it is a real or no? The only person who can say is Mother Nature. So the biggest scam that I think that is happening nowadays is certifications. They sell a lower grade product with a certification where a lab is in, सोचिए यूपी के कोई गांव में। Okay. ओके, बट जो स्टोन आ रहा है वो ब्राज़ील की कंट्री से आ रहा है, जिसका नाम सोचो ब्राज़ील में एक सिटी है एमिस्था, जहाँ से एमेथिस्ट बहुत आता है। ठीक है, उनको पता भी नहीं है कि सिटी एग्जिस्ट करती है। ओके, आप उन मतलब दे आर नॉट एबल टू प्रोनाउंस ब्राज़ील। व्हाट आई मीन इज हाउ कैन अ गांव में छोटा 10 बाय 10 का लैब कैन से कि ये, और जो आप फॉर्मेट देखेंगे उनके सर्टिफिकेशन का, सारे फॉर्मेट्स एक ही हैं। Okay. तो ये पैसे बनाने की एक तरकीब है। मैं तो ये बोलती हूँ कि जब तक मदर नेचर आके ये नहीं बोल के जा रही है कि ये मेरा है, तब तक हम कोई नहीं होते ये बोलने वाले कि ये मतलब वो है। मैं कौन हूँ क्लेम लेने वाली। सो ये बहुत अच्छा गिमिक है। पास कर लो अपना, थोड़ा सा माइक पास कर लो। या तो ये बहुत अच्छा गिमिक चल रहा है मार्केट में, जहाँ पे लोग छोटे सस्ते प्रोडक्ट को आपको 500 रुपये 700 रुपये की चीज़ दिखाने के लिए साथ में एक सर्टिफिकेट दे देंगे, तो मेंटल बिलीव हो जाएगा इंसान का कि दिस इज अ ओरिजिनल प्रोडक्ट। सो दिस इज वन ऑफ द वेरी बिग गिमिक। Does your products come with certification? few if you want, but I don't say. Okay. मैं ये सीधे बोलती हूँ, मैं आपको रिफंड वैल्यू दे रही हूँ, आपका नहीं काम किया तो आप पैसे ले जाइए, सामान आपका। आपको 500 रुपये 300 रुपये एक्स्ट्रा देके सर्टिफिकेट लेना है तो ले लीजिए, आपकी चॉइस है। ठीक है, पर ये भी काम करेगा, वो भी काम करेगा। वो भी सर्टिफिकेशन इसलिए है क्योंकि मार्केट में हवा भरी हुई है, इसलिए, वरना हम नहीं प्रिफर करते कि एक कागज आके हमारे एनर्जीज को जस्टिफाई कर पाए। सो दैट वे ये एक बहुत बड़ा मेजर स्कैम है। सेकंड स्कैम, आई थिंक देयर इज नो कंप्लेन एज सच, बट व्हाट वी पुट अ लॉट ऑफ एफर्ट्स टू बी वेयर वी आर, लाइक आप एनर्जीज दिखती नहीं तो आदमी को लगता है जस्ट नॉलेज है, पर हम जो मतलब 90% ऑफ आवर टाइम हम मेडिटेशन में लगाते हैं वो लिटरली कहीं ना कहीं रिजल्ट देती हैं। तो हम देख रहे हैं बहुत सारे ब्लॉगर्स बेच रहे हैं, पैसे कमाने का जरिया है, बट आप ज्ञान भी दीजिए ना साथ में, या आपके पास कोई हीलर है तो आप वो कीजिए ना। अब आपका काम है, अब सोचिए आप पॉडकास्ट कर रहे हैं या फिर आपका काम है ब्लॉग बनाना, फेस की क्रीम बेचना, आपके बाल अच्छे करना, आपको मैंने एक स्टोन दे दिया आपके लाइफ में चेंज, जो आपने बेचना शुरू कर दिया और आप उसे हीलिंग प्रोडक्ट बोल रहे हैं। तो मैं ये कह रही हूँ कि ठीक है, अगर आप क्रीम बेचिए, मना नहीं है, पर आप भी अपने आप को भी तो ये कीजिए ना, पहले उस लेवल का आइए जहाँ आप दूसरे की ज़िंदगी को सुधार सकते हैं, पत्थर को अभिमंत्रित कर सकते हैं। ये एक और हमने देखा। दूसरी चीज़, इंसान 50 रुपये 150 रुपये का पत्थर खरीद रहा है, लिटरली थोड़ा सेंस में आए। ठीक है,
पानी पूरी आ रही है 50-100 रुपए की, बिस्लरी का पानी आ रहा है 50-100 रुपए का, पत्थर और चीज़ें नहीं आती 50-100 रुपए में। ये तो हम आप सब जानेंगे। जब कान मतलब ज्वेलरी नहीं आ रही है, कपड़े नहीं आ रहे हैं, चिकन कढ़ाई का कुर्ता नहीं आ रहा है, तो लिटरली ये बात तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है। ये दूसरा इंटेंशंस, इंसान आपके प्रति कुछ भी काम करता है। मेरी मम्मी बोलती है ये बात, हमारी माताश्री, कि विश्वासम फलदायकम। आप मिट्टी को भी विश्वास के साथ किसी को दे दो ना, तो वो भी फलदायक होती है। तो इंसान की नीयत बहुत ज़रूरी है। किस नीयत के साथ आप किसको क्या बेच रहे हैं, क्या निकलना चाह रहे हैं उस जगह से, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इसके लिए। ओके। सो इसीलिए हमने ये रखा कि लाइक रिफ़ंड देंगे, काम नहीं किया तो वो मतलब सो दैट आप पैसे ले लीजिए, हमको ऐसा नहीं है पैसे की कमी है, बट क्योंकि हम बोल के दे रहे हैं कि आपकी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ लाएगा, पर ये नहीं गारंटी दे रही हूँ कि 50 लाख लाएगा, 5 करोड़ लाएगा, 5,000 लाएगा। आप जितनी मेहनत करोगी उतना मेहनत आपको रंग ला के देगी। ऐसा नहीं है नहीं ला के देगी, और नहीं ला के देगी तो पैसे वापस ले जाइए, सामान आप रख लीजिए, वी डोंट माइंड। ओके, सो दैट वे। ठीक है। So, anything that you want to tell the viewers who are watching this, who want to, maybe connect with you, or maybe, get a consultation done from you, how can they reach out to you? Can you just maybe plug in your Instagram? Yeah. Anything? See, my company name is Inner Healings with Pooja. Okay. We are very much into healing. Let it be through crystals, Reiki, tarot cards, Vastu, numerology, Kundali, dream analysis, pendulum, hypnosis, सब चीज़ healing. Okay. हम आपको betterment feel कराना हमारा काम है। तो ये एक चीज़ है। इनर हीलिंग्स विद पूजा, यू कैन रीच मी आउट ऑन गूगल। प्लीज़ रीड आवर रिव्यूज़, चेक अस आउट। वेरी बहुत मेहनत करके कंपनी खोली है। प्लीज़, नन ऑफ द रिव्यूज़ आर परचेज, वेरी ओरिजिनल, सबने इस्तेमाल किया है फिर ही मतलब विश्वास किया है। सो दैट वे। सेकेंडली, हमारी कम्युनिटी है, हम इंस्टाग्राम पे बायो लिंक मिल जाएगी, आप ज्वाइन कीजिए, सीखिए, एनालाइज कीजिए, आप हमसे बात कीजिए, कंसल्टेशन लीजिए। आप 500 का चीज़ ले रहे, 200 का चीज़ ले रहे हैं, हमारे लिए कोई बजट नहीं है, कुछ नहीं है, हम सबसे बात करेंगे, सबको कंसल्ट करेंगे, ये करेंगे। प्लस हम तो ये बोलेंगे पॉडकास्ट में मे बी हम कम्युनिटी का लिंक डाल देंगे या कुछ, बिल्कुल। तो इनके लिए कस्टमर्स कैन ईजिली रीच आउट। कोई भी प्रॉब्लम है, इवन एट 2 in the night, मेरा एक मानना है, अकेले नहीं सफ़र करो। अब हम हैं, पहले के ज़माने पे बात करने के लिए नहीं मिलता था, हीलर्स नहीं मिलते थे, हमने दिन देखे हुए हैं, हम बहुतों को जानते हैं जिन्होंने देखा है। अब हम हैं, हम रोक नहीं रहे हैं। 2 बजाए 4 बजाए 4, कुछ भी टाइम है, ये हमने प्रोफेशन चूज़ किया है क्योंकि भगवान ने दिया है। हम every time don't have to suffer alone. Don't think of anything crazy, because I've had a lot of clients who जिनका मैं लास्ट कॉल होती हूँ, ठीक है, और वहाँ से फिर हमें स्टार्ट करना पड़ता है कि आप एक दिन दे दीजिए हमें, देन विल वर्क ऑन इट। सो आई नो देर आर इनफ ट्रबल्स इन लाइफ, बट हम हैं, हमें एक चांस दे के देखिए, यू नेवर नो व्हाट चेंजेस। एंड हम, एज आई मैंशनड, हम इनफैक्ट 100 व्यूअर्स को गिव अवे भी दे सकते हैं फ्री में, बिकॉज हम अंडरस्टैंड करते हैं ये रिच के लिए, पुअर के लिए, किसी के लिए नहीं है। ये वो है जो बिलीव, मतलब आप ट्राई करना चाहें, आप कोशिश करना चाहें। हम 100 पायराइट्स जो स्टोन है, क्या कहते हैं, पैसों के, हम प्योरली एनर्जाइज करके स्पेशल तरीके से व्यूअर्स को दे सकते हैं, ठीक है, जहाँ पे 100 ऑफ देम what they can do is they can reshare our podcast, they can comment on our podcast, okay, they can tag 2 to 3 friends of theirs, okay, and the more they comment, the more they can gain, and we will send them the stone across, let them use। काम हुआ, फलदायक है, तो आइए। That's nice. We can validate this podcast then also. Whatever we have been talking about with this giveaway, we can also validate that. Yes, 100%. See, you know what, like अगर, as I mentioned, I am ready to give 100 viewers, the stones. कीप इट, यूज़ इट फॉर मिनिमम 6 months। आपको डिफरेंस लगता है, कुछ भी होता है, आइए कमेंट कीजिए। उसके बाद देखो, मैं 100 को तो पुश करके उनकी लाइफ में एक चेंज लाने का या फिर कहीं ना कहीं ओपनिंग दे सकती हूँ, बट बाकियों का तो आपको अपने आप से ट्राई करना पड़ेगा। ऑप्शन सबके पास हैं, जितना आप कमेंट करेंगे, कोई ना 100 लोगों को हम पिकअप करेंगे, सो व्हाई नॉट। थैंक यू सो मच फॉर डूइंग दिस, पूजा। आई रियली हैव हैड अ ब्लास्ट टॉकिंग टू यू। And if you're watching this podcast, just share this podcast with 3 of your friends, and also comment why you liked this podcast. So we'll be choosing 100 people randomly to give out these pyrite stones, the money stones that you talked about. So you can use them, reach out to Pooja for any consultations. The link is in the description below. You can see the numbers flashing here. There's a website, innerhealingswithpooja.com, that you can reach out. Thank you so much for watching Not Knowing Podcast. Thank you so much, Pooja, for doing this again. I really had fun. Thank you so much. Subscribe. And because we have had a lovely podcast,
थैंक्स फॉर द व्यूअर्स, बट या अगर हमसे कोई भी गलती हुई हो, कुछ भी है, हम भी इंसान हैं, बोलते बोलते कुछ निकल जाता है, आपको कुछ अच्छा लगे या नहीं पसंद आए, माफ़ कीजिएगा, हम भी अपना ट्राई कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, सेम जनता जैसे हम भी एक नॉर्मल आदमी है, तो सेम तरीका, माफ़ कीजिएगा अगर कुछ गलती है आपसे भी, व्यूअर्स से भी, एंड थैंक्स अ लॉट No, I आपने जगह really दिया. loved having this conversation with you, and get to know a world that I didn't even know existed. And also I knew, जैसे मैंने starting बताया, I knew something about chakras and everything, but I'll go back, read more on it, and then maybe we can have another episode where you are more telling me of a certain aspect. We can talk about just crystals per se, just Yes. tarot per se. I think 100% I would like to maybe next podcast में अगर viewers ने चाहा तो, हमको प्यार दिया तो, 100% I would like to talk about how spiritual and science is interconnected, not from now but from different yugas. Yeah. How in Hinduism they mention about lokas, जो मतलब भूलोक होता है, नीचे का वासुकी का लोक है, different lokas that is internally in science is connected with us.